So today we are going to discuss about gestational diabetes mellitus. Gestational means we are talking about during pregnancy, right? And diabetes mellitus is high sugar levels. So the high sugar levels which occur during pregnancy, this is termed as gestational diabetes mellitus. Pregnancy itself is a diabetogenic state, right? Now what are the risk factors? So first of all is your positive family history of diabetes mellitus, or there is previous birth of an overweight baby of more than 4 kg. नेक्स्ट इज प्रीवियस स्टिल बर्थ एंड ऑफ दैट स्टिल बर्थ बेबी अगर आप अडॉप्सी करेंगे तो उसमें हमें पैनक्रियाटिक आइलेट्स में जो होता है हाइपरप्लेजिया दिखता है, राइट? और देयर आर सम अनएक्सप्लेन्ड पेरिनेटल लॉसेस, राइट? In gestational diabetes mellitus, the fetal anomalies are not increased, right? Then there can be presence of polyhydramnios. Why there will be polyhydramnios? Because the baby in gestational diabetes mellitus is big. उसका macrosomia, that means more than 4 kgs आपको baby weight मिल सकता है. तो more the size of the baby, more will be the urine production, more will be amniotic fluid, right? एंड नाउ क्योंकि डायबिटीज़ है, राइट? सो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. सो देयर कैन बी रिकरेंट वेजाइनल कैंडिडियासिस इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी एंड देयर विल बी ग्लाइकोसूरिया. इट इज कॉमन इन pregnancy, right? Age also matters. Age over 30 years, obesity, and ethnic group, like Asians and others. So in India also, we consider ourselves to be a high risk for gestational diabetes mellitus. इसलिए screening जो है वो सबकी की जाती है. Now this is an international criteria. We in India follow the DIPSI criteria, right? But just for your knowledge, the test is done, the international one, right, at 24 to 28 weeks of pregnancy. And here fasting is required. फिर blood sample लिया जाएगा. फिर 17 gram oral glucose mixed in water is given. And then again samples are taken, one at 1 hour and another at 2 hours. तो मतलब in total 3 samples यहाँ पे लिए जाते हैं, right? But we are concerned about in India about the DIPSI criteria. Now what happens in this? Early screening in high risk patients. In the first antenatal visit, वैसे तो ये सबकी ही की जाएगी जो भी first antenatal visit पे आएगा, right? फिर second screening की जाती है 24 to 28 weeks. Why only 24 to 28 weeks? क्योंकि इसमें जो है सिग्निफिकेंट हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, राइट? और फर्स्ट एंटीनेटल विजिट और सेकंड, इसके बीच में मिनिमम 2 वीक्स का गैप होना चाहिए. नाउ हाउ यू गोइंग टू डू दिस टेस्ट? इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस मील, हमें इसमें फास्टिंग, जैसे हम ऊपर फास्टिंग ले रहे थे, यहाँ पे ऐसा कोई लेना देना नहीं है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस मील्स, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर. हाउ मच वाटर? 300 ml, ठीक है? 300 ml में आपने 75 ग्राम ग्लूकोज ऐड करना है और फटाफट फिनिश करना है उसको विद इन 5 मिनट्स. इफ द विमेन वॉमिट्स, राइट, इफ द विमेन वॉमिट्स, आपको नेक्स्ट डे कंडक्ट करना है टेस्ट. और अगर 30 मिनट्स के बाद वॉमिट करती हैं देन यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट, ठीक है? सो आफ्टर 2 आवर्स आपका रिजल्ट आएगा, राइट? तो अगर 140 से ज़्यादा है बट 200 से कम है तो दिस इज गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है? मोर देन इक्वल टू 140, तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. लेकिन 200 से ही ज़्यादा है तो प्री गेस्टेशनल, मतलब उसको डायबिटीज़ पहले से ही है. नाउ व्हाई दिस अकर्स? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ not only this, but this is important, human placental lactogen, HPL. This is major, but others also play an important role like estrogen, progesterone, free cortisol, and degradation of insulin by the placenta. Now, how you going to care? So we have the national guidelines. सबसे पहले तो all diabetic patients, ठीक है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, मतलब प्रेग्नेंट तो डेफिनेटली वो होंगी ही, बट उनको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो या आपको पहले से ही प्री गेस्टेशनल डायबिटीज हो, दे ऑल हैव टू अंडरगो द अनोमली स्कैन, which we know that all of them have, they have to do, right? And level 2 scan, which is at the 18 to 20 weeks. Growth scans at least 2 होने चाहिए, एक 28 to 30 और एक 34 to 36. मिनिमम गैप 3 वीक्स का होना चाहिए. मतलब जो यूजुअल स्कैन्स होते हैं वो तो होंगे ही, बट हम स्पेसिफिकली ये भी कंडक्ट करना चाहेंगे बिकॉज वी नो वी हैव टू सी द वेट ऑफ द बेबी, मैक्रोसोमिया. नाउ हाउ मेनी विजिट्स हैव टू बी देयर? नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स. नाउ अगर तो हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है विद वेल कंट्रोल्ड ब्लड शुगर और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो हम उसको रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स को फॉलो अप करने के लिए कहेंगे. लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं और वेल कंट्रोल्ड भी उसका ग्लूकोज लेवल नहीं है तो हम सेकंड ट्राइमेस्टर में तो उसे 2 वीकली बोलेंगे कि बार बार आइए, और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम उसे वीकली बोलेंगे, हर वीक आना है, ठीक है? और हर विजिट पे बीपी भी उसका चेक करना है, प्रोटीनूरिया भी चेक करना है, क्योंकि देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ पीआईएच बिकॉज द डायबिटीज मेलाइटिस इज अ रिस्क फैक्टर फॉर पीआईएच. देन हमने इन्फेक्शंस की भी बात की थी, तो टू रूल आउट इन्फेक्शंस हमने ईच विजिट पे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी भी करनी है. यूटीआई के चांसेस हो सकते हैं, कैंडिडियासिस के चांसेस हो सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया हो सकता है, राइट? देन फ्रॉम 32 वीक्स, मतलब ड्यूरिंग द लास्ट स्टेजेस, फीटल मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेथ एंड स्टिल बर्थ्स, ठीक है? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? डेली फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है? डीएफएमसी, एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी वीकली कर सकते हैं, बायोफिजिकल स्कोर भी आपको वीकली करना है. दीज आर ऑप्शनल्स बट डीएफएमसी मदर खुद चेक करेगी, ठीक है? देयर हैज टू बी मूवमेंट्स, फीटल मूवमेंट्स. डू नॉट डू डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स बिकॉज दे आर मेनली डन इन पीआईएच एंड आईयूजीआर जहाँ पे यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है, ठीक है? नाउ हाउ यू गोइंग टू मैनेज सच पेशेंट? नाउ आवर गोल इज टू रीच दिस. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हमारा 95 से कम होना चाहिए. 1 आवर पोस्ट प्रैंडियल लेस देन 140, 2 आवर पोस्ट प्रैंडियल लेस देन 120, HbA1c लेस देन 6 एंड एवरेज कैपिलरी ग्लूकोज लेवल्स लेस देन 100. नाउ तो ये सब हम कैसे अचीव कर सकते हैं? सबसे पहले हमें डाइट मॉडिफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे, और डाइट मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, प्लस आप पेशेंट को मॉडरेट एक्सरसाइज बोलेंगे.
ठीक है। देन आफ्टर 2 वीक्स जब वो इस मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को ले रही होगी तो 2 वीक्स के बाद इफ 2 आर पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज लेवल्स उसके 120 से कम है, सो रिपीट टेस्ट एवरी 2 वीक्स इन सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में हर 2 वीक के बाद मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में 2 बार आपको ग्लूकोज उसका चेक करना है, और यही वाला आपको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी यू कैन चेक ऑन नेट, द गाइडलाइंस आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने एक फिक्स न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बीएमआई, ठीक है। और ये भी कंटिन्यू रखना है, लेकिन मतलब इसमें तो वो मैनेज कंट्रोल हो गया डाइट के थ्रू ही, डाइट के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ, उसका 120 से ज़्यादा अभी भी है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि 2 आर हमारा 120 से कम होना चाहिए, तो इसमें तो हमने कंटिन्यू ही रहा, ठीक है, डाइट पे ही, इसमें 120 से ज़्यादा है, सो अलॉन्ग विद डाइट वी आर गोइंग टू गिव इंसुलिन थेरेपी, एंड दिस इंसुलिन थेरेपी इज ऑल्सो गिवन एज पर द गाइडलाइंस, कैन बी चेक्ड ऑनलाइन। एवरी थर्ड डे हम फिर से टेस्ट करेंगे, अब यहाँ पे उसमें तो हम वीकली कर रहे थे, राइट, 2 वीक्स और एवरी वीक, अब इसमें आपको इंसुलिन थेरेपी जब देंगे हर 3 दिन के बाद आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। नाउ व्हाट टाइप ऑफ इंसुलिन यू गोइंग टू गिव, ह्यूमन प्रीमिक्स इंसुलिन 30:70 के रेशियो में 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल इन 1 ml सिरिंज सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, ठीक है। एंड these are the insulin levels, this is unit, okay, 4 यूनिट्स। हमने कहा था 120 से ज़्यादा होगा, तो अगर 120 से 160 तक उस लेडी का आ रहा है तो उसको 4 यूनिट्स आपने इंसुलिन देने हैं, अगर 120 से 200 आपका आ रहा है तो 6 यूनिट्स देने हैं, और अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो 8 यूनिट्स देने हैं, ठीक है। एंड वंस द मेटाबॉलिक गोल्स आर मेट, ठीक है, अब हमने इंसुलिन दे दिया, मेटाबॉलिक गोल्स हमारे रीच कर गए, कंटिन्यू द सेम डोज ऑफ इंसुलिन एंड आपका डाइट वाला, ठीक है। आपने इंसुलिन भी आप ठीक करते रहना, और फिर से नाउ यू हैव टू एवरी 2 वीकली बिफोर 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अब आपको आगे तक उसको चेक करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। You are giving insulin, and insulin is the drug of choice. You are not giving oral hypoglycemic agents. They cannot be used here because they cross the placenta and cause hypoglycemia, and they are less potent. But we have an exception here. Exception is metformin can be given, and metformin can be given in 500 milligram per day. That time दे सकते हैं और increase भी कर सकते हैं every week 500 से, और maximum 2500 तक जा सकता है, ठीक है। And another drug is this one. And next comes the termination of pregnancy. ठीक है, तो आपने इंसुलिन पे चलाया है, उसको डाइट पे चलाया है, बट एट द एंड वी हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। हाउ वी आर गोइंग टू टर्मिनेट एंड एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स सी। सो दिस वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नोइंग अबाउट द प्रिस्टेला वाइट क्लासिफिकेशन। वी हैव टाइप ए और क्लास ए, नॉन टाइप ए और क्लास नॉन बी, नॉन ए, सॉरी। नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट टाइप ए हियर, gestational diabetes mellitus. It's divided into A1, A2. A1 is the lady is having gestational diabetes mellitus and it is well controlled with diet. So for this patient, we can terminate the pregnancy at 39 weeks or up to 41 weeks. But we do not have to keep on waiting for the labor pains to start by itself. हमें सिर्फ इतना ही वेट करना है, हमें क्या करना है, planned delivery. We will induce by ourselves the labor pains. क्यों? Because there are increased chances of IUDs and stillbirths, right? And we are not talking about cesarean, हम vaginal delivery ही करना prefer करेंगे, right? Now in second one, if there is gestational diabetes mellitus and it is controlled by insulin or oral hypoglycemic agents, जो हमने exceptions पढ़े थे वो, in such cases भी हम 39 weeks तक जाएंगे, but up to 40 weeks only ही हम देखेंगे। But what if it is not controlled, तो हम इतना नहीं जाएंगे, हम 37 to 38 plus 6 days ही जाएंगे, ठीक है। Pre-gestational diabetes जिनको पहले से ही है, ठीक है, so these all comes under this retinopathy, nephropathy, proliferative nephropathy and heart diseases. If it is well controlled, we go till 39 weeks. If it is not well, it depends upon the complication, right? So how we know that we have to do cesarean? It will be for obstetric reasons, like if the weight is more than 4.5, more than equal to 4, not 4. The definition of macrosomia says 4, but we are talking about cesarean, right? तो cesarean के लिए 4.5 kg अगर उसका weight है, अगर कोई नॉर्मल फीमेल है, नॉन डायबिटिक है, तो हम अगर उसका बेबी 5 kg का है तब cesarean करते हैं, लेकिन डायबिटीज वाले में 4.5 में करते हैं, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग लेबर इंसुलिन रिक्वायरमेंट डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम कम देंगे, एंड दिस ऑल्सो वी कैन चेक ऑनलाइन एज पर द गाइडलाइंस। IV infusion with normal saline to be started and regular insulin to be added according to blood glucose levels. एंड पोस्टमार्टम में भी हमने टेस्ट करना है, 6 वीक्स के बाद हम उसको बुलाएंगे एंड फिर से हम 75 OGTT टेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ देयर आर सम नोट्स लाइक अगर कोई डायबिटिक मदर पहले से ही जिसको डायबिटीज़ है, ठीक है, तो उसमें अनोमलीज क्या क्या देखी जा सकती हैं, सीवीएस ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू सीएनएस। सीवीएस में जैसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, सेक्शुअल एजेनेसिस, राइट, दिस सेक्शुअल एजेनेसिस इज सीन इन डायबिटीज मेलाइटस एंड सिंगल यूट्राइन नाइट्रोजन टाइप 2। Now, why we are so concerned about diabetes mellitus? Let's see the maternal complications. During pregnancy, the baby can be aborted by itself. Abortion हमने risk factors में भी पढ़ा था, ठीक है, तो abortion हो सकता है, preterm labor हो सकता है, infection के chances हो सकते हैं like UTI and vulvovaginitis, increased incidence of preeclampsia can be there, ये भी हम discuss कर चुके हैं, polyhydramnion also because there is large baby, there is large placenta also, fetal hyperglycemia because fetus जो है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज में आपका fetus है तो वो पॉलीयूरिया कर रहा है, एंड इंक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इरिटेटिंग द amniotic epithelium, right? Maternal distress can be there because such large baby is there. Diabetic retinopathy can be there. Diabetic nephropathy can be there. Coronary artery disease can be there. Ketoacidosis can be there. And this can also occur अगर hyperemesis हो lady को in early pregnancy, right? Now what can happen during labor? Prolongation of labor can be there क्योंकि baby बहुत बड़ा है उसका. Shoulder dystocia. Why? Because shoulder to head ratio आपका बढ़ जाएगा उसमें. Perineal injuries, again the baby is big in size. Postpartum hemorrhage, right? And operative interference can be there. What about post labor? Again we have sepsis and lactation failure can be there. Now next is fetal and neonatal hazards. So 50% chances आपके
फीटल मैक्रोसोमिया की ही है, उसमें 4 kg से बड़ा बेबी वेट होगा उसका। अब क्यों बेबी का साइज बिग हो चुका है? बिकॉज ऑफ द मेटर्नल हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस जो फीटस के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं उनमें हाइपरट्रॉफी और हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। दीज सेल्स दे सिक्रेट what insulin, so there is increased secretion of fetal insulin, and this stimulates the carbohydrate utilization and accumulation of fat. Along with fat there is insulin like growth factors, and they all are involved in fetal growth and adiposity. Okay, and also there is elevated maternal free fatty acids, so fetus acceleration of triglyceride synthesis, and again it leads to adiposity, and all these reasons include to fetal macrosomia. Then there can be congenital malformation, 6 to 10% cases, but this is in आपके जो pre-gestational diabetes वाले patients होंगे, they are right. Can we detect early? Yes, we have to check for HbA1c, maternal serum alpha fetoprotein levels, and comprehensive ultrasound examinations. Now at 24 to 28 week, this at the time जब resistance सबसे ज़्यादा होती है, blood glucose sugar सबसे ज़्यादा होगा, so free radical सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है. But at this particular time 24 to 28 organogenesis is already complete, इसलिए gestational में हमें कोई congenital malformations rarely नजर आएंगी, right? Now what can be the neonatal complications? जो बेबी अब born हो गया है, उसमें क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू हाइपर इंसुलिनिया, क्योंकि अब बेबी इज बोर्न, अब उसको मदर से कोई भी शुगर ग्लूकोज नहीं आ रहा है, तो वो तो हाइपो में चला गया, लेकिन उसकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा तो ज़्यादा ही रह गई, ठीक है. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्यों? अब ये जो इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, ये बेसिकली हमारा सर्फेक्टेंट बनने नहीं देता है, इसलिए भी हम डिलीवरी टाइम से करवाना चाहते हैं, ना ही हम जल्दी कराना चाहते हैं, ना ही हम लेट करवाना चाहते हैं. तो सर्फेक्टेंट हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सेस हमारा इंसुलिन है वो ब्लॉक कर देता है कॉर्टिसोल एक्शन को, एंड बिकॉज कॉर्टिसोल एक्टिवेट्स द टाइप 2 न्यूमोसाइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. देन देयर इज आल्सो हाइपरबिलिरुबिनेमिया, सो ड्यू टू हाइपोक्सिया एरिथ्रोपोइसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. फीटल आरबीसीज जो होंगे वो बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू डाई दे आर गोइंग टू रिलीज बिलिरुबिन. हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, राइट. Cardiomyopathy, this will be reversible and gradually improves. Now there is a particular syndrome, hyperviscosity syndrome. It includes hyperbilirubinemia plus polycythemia. Polycythemia is also occurring here because of the increased erythropoiesis. और लॉन्ग टर्म पे चाइल्डहुड की ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड डायबिटीज भी उस बेबी को हो सकता है.